Done, sir. 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आप सभी मित्रों को बधाई, शुभकामनाएं। और ये दिन विशेष महत्व इसलिए भी रखता है कि आज मानवाधिकार घोषणा पत्र अपने 75 वर्ष पूरे कर चुका है। 10 दिसंबर 1948। आज इसी अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में 105वीं वेबिनार जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और दिल्ली का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में। आयोजन की शुरुआत में मैं अनुरोध करूंगा शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर, लेखिका, समीक्षक, कथाकार डॉक्टर उषा साहनी से कि वे सरस्वती वंदना के माध्यम से और आप सभी के स्वागत उद्बोधन के साथ आज की वेबिनार का प्रारंभ करें। डॉक्टर उषा साहनी। सर, माँ शारदे के श्री चरण की 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। Good evening, to one and all present here. As we all know that this is the 105th webinar which we are organizing with Communication Today and Bharati Vidyapeeth from Indraprastha University, New Delhi. It has been a great pleasure to be on this virtual platform since 2nd October 2020, when the entire journey started under the supervision of Professor Bhanawat. He took this initiative to work through this virtual platform in a way so that the media education can still flourish and come up with flying colors. The first webinar that we have held on 2nd of October 2020, it was the landstone, that it was the milestone for us, which actually gave us the boosting morale, and we never stopped under the supervision of Professor Bhanawat. And we completed 3 years and 100 webinars under the umbrella of Communication Today, a media bilingual communication journal, which actually has given 10 special issues as well on the subject of media education. This journal has been actually very, very influential, and people from a media background, not only the scholars, the students, but media academicians and media practitioners, they all had contributed through this journal. Plus, the important point that Sanjeev Bhanawat sir has taken into consideration is this, that it wasn't only in one language, English, but it was in Hindi language as well. Whereas at that time, when he started with this journal, it was very much there that only people were writing in English. So this journal has actually provided a very strong base for media education fraternity. Along with, when we have completed these 3 years and completed 100 webinars, after got an opportunity to collaborate with Bharati Vidyapeeth. And in that association, we started this webinar series in a fresh mode, another new milestone that we are going to cover, and lot many things we are going to do under this umbrella of joint venture. Today, as we all know that Professor Bhanawat, and now after this 101st webinar, Professor Huda, both are trying to come up with latest contemporary topics
so that the people who are actually joining us through this platform can be benefited as much as possible. Fourth, the topic that has been selected for today is media and human rights. We all, even at present also, when we are to each other, we are seeing each other in small windows. We can understand that we all very gentle, in a very gentle manner, we all are sitting here across this virtual platform looking at each other. But inside, within us, we all know that this is one thing that is the healing. Now, how to protect this humanitarian thing, how to protect this human beingship? So many things are being worked upon, and what? The commissions are there. Of course, to run a particular thing, one united council or committee is supposed to be there which can take care of it. So, of course, we have this human commission with us, which can really work upon the needs and the issues that are being that are happening with the human fraternity, and how to take care of that. Today, as per the topic is suggesting that we're going to talk about human rights, we have eminent speakers amongst us. Justice Narendra Kumar Jain, former chairperson, HP Human Rights Commission, Jaipur. We have Dr. M.K. Devarajan, retired DGP, former member, Human Rights Commission, Jaipur. Mr. Yograj Sharma, founder of World Human Rights Organization. We have these very influential people, very strong dignitaries on this dais. And of course, the participants are going to be benefited by the views and the ideas and whatever they have gone through while working, the experiences that they're going to share. Definitely, we all are going to be benefited with that. Handing over back to Professor Bhanavat for the introduction of today's theme. Thank you, sir. बहुत बहुत आभार डॉक्टर उषा साहनी आपके इस स्वागत वक्तव्य के लिए। केवल एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कम्युनिकेशन टुडे का 11वां विशेषांक भी प्रकाशित हो गया है। अक्टूबर से दिसंबर का जो हमारा अंक है वो प्रख्यात फिल्मकार मृणाल सेन को समर्पित है, और जैसा कि हमारे में से अधिकांश मित्र जानते होंगे कि यह वर्ष मृणाल सेन की जन्म शताब्दी वर्ष है। तो हमने हमारी वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिया है और इसका प्रिंट वर्जन बहुत जल्दी ही हमारे बीच में होगा। कार्यक्रम की अगले चरण में मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एमएन हुडा साहब से कि वे भी इस अवसर पर अपने संस्थान की तरफ से हम सभी का स्वागत करें और अपनी बात कहें। प्रोफेसर हुडा टेक्नो फ्रेंडली हैं। जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि इस वेबिनार सीरीज को हम संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। तो मुझे लगा कि एक शैक्षणिक संस्थान के साथ यह कोलैबोरेशन विद्यार्थियों की नई पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा, और जो हमारा प्रयास है उसको एक नया फलक मिल पाएगा। प्रोफेसर हुडा कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और आपका एक जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है, स्कोपस इंडेक्स्ड है, और उसके माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे शोध अनुसंधान को एक मंच पर लाने का अद्भुत प्रयत्न किया है। मैं प्रोफेसर हुडा से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वे अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर हुडा। Good evening, one and all. I take this opportunity to welcome you all to this 105th maybe webinar series of this media lecture series, which was started none other than by Professor Sanjeev Banavat. And Dr. Usha has nicely briefed that the landmark journey, which was started in October 2020, is flourishing every coming week, every coming day, every coming occasion. And from 101st lecture series, Bharati Vidyapeeth and Communication Today have joined hand together to jointly present this media lecture series before all of you. I take this opportunity at the outset to welcome you all in this 105th webinar and lecture series. Dear friends, we have three very outstanding and eminent speakers today.
With all of us, we have Justice Narendra Kumar Jain, former chairperson in Madhya Pradesh Human Rights Commission, Jaipur. We have Dr. M.K. Devarajan, retired Director General of Police, former member Rajasthan Human Rights Commission, Jaipur. And we have Mr. Yogaraj Sharma, who is just with me. And together we are sitting in one camera frame and interacting with all of you, who is again a champion and in entire northern belt, particularly Delhi NCR. He remains active for the human rights and he's a founder chairperson of World Human Rights Organization. And the beauty to him is he has devoted close to 3.5 decades with media. While being in the media, he has seen that how important is human rights. So dear friends, we have three very eminent speakers today who will be talking on media and human rights and will make us to understand to which extent human rights are important, what is the role of media in our country particularly with respect to human rights, where we are, what is the present state of art, where we want it to go. All of us know that we all people are smart, and once we are smart, we have some inherent protections that what we term as human rights. As amenities to human rights or as amenities to each individual's right stipulate that no one else action can or should go against the will of the person. And the idea behind this is that people need to be shielded, protected from cruel and harmful treatment by anyone on this planet. Media often regarded as the fourth pillar of the democracy and may contribute significantly to the defense of human rights because it contributes actively for the purpose of opinion building and perception making. On the other hand, if we see closely, the media's primary goal should be to rapidly distribute information to the general public. This obviously suggests that sooner the human rights are protected, the more active media will become, and the more active role the media will do for the society. The media's heightened activity in the present context, when we are talking about 24/7 reporting, every multiple hundreds of channels available in and around us, and in the race that everything should go fast. So to which extent we are protecting the human rights and social injustices happening on account of one or other reason, which may be termed as the violation of human rights. The role of the media in this situation will be to keep a watch on those in positions of authority, particularly those who are serving to the people, to attempt to rein in their arbitrariness, ad hocism, and expose the wrongdoings of those in power for the general people or the people at large. On this important day of World Human Rights, all of us have got responsibility, rather the inherent responsibility, to introspect ourselves, to which extent media is doing that, to which we all of us the part, and to which extent and where and in which way we should do that. So friends, I am sure with the help of the valued speakers today, the deliberations will be of immense value addition to all of us. And when we are talking of human rights in general, and particularly for everyone, and particularly for the human rights of the deprived section of the society, we should not leave any stone unturned to go forward and see to it that what best we can do to protect it and be a proud member of this society. So thank you so much. Dear friends, with the communication today, Bharati Vidyapith, we keep on presenting before you the media lecture series and many more lecture series on select occasions are in the pipeline. So keep visiting our website, keep connected with our WhatsApp group, keep visiting our YouTube page so that you are well aware of our future activities. And thank you so much. Wish you all the best. God bless you all. Once again, a very happy World Human Rights Day to all of you. Thank you. Over to you, Bharat. बहुत बहुत आभार हुडा साहब। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के तीनों माननीय अतिथियों का
ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से मतलब हूँ। हाँ। आवाज आ रही है सर? So we take this opportunity to welcome all our three valued experts who will be sharing their experience, their ins and out while working in the domain of media. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन का ज़माना है, चीज़ें बदल रही हैं हमारे आसपास, और जब चीज़ें बदल रही हैं तो बदलते परिवेश में फूलों को तोड़ना और उसे पहुंचाने से बेहतर है कि हम ऑनलाइन फूलों को देखकर फूलों की खुशबू का एहसास करें। जब हम फूलों की खुशबू का एहसास करें तो हम कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूँ। सो ये फूल और ये खुशबू हम सारे एक्सपर्ट्स और साथ में सारे पार्टिसिपेंट सबके लिए। थैंक यू। ओवर टू यू बनावत सर। सर, ये फूलों की खुशबू अब एक विचारों की खुशबू के रूप में उसके सुरभि का आनंद हम सभी लोग उठाएंगे और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि 10 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और जिन मानवाधिकारों की हम बात कर रहे हैं, जन्म से व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसके साथ ये मानवाधिकार जुड़ जाते हैं और वो आजीवन मृत्यु पर्यंत उसके साथ किसी न किसी रूप से रहते हैं। 1948 का वो महत्वपूर्ण वर्ष जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसको स्वीकार किया। हालांकि ये घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं था। सभी राष्ट्रों से ये अपील की गई थी कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार से भेद नहीं हो। स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी से मुक्ति का अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संयोग है कि जो हमारे देश का संविधान है उसमें लगभग ये सभी तत्व समाहित हैं, चाहे मौलिक अधिकार के रूप में हो, चाहे नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में हो। तो भारतीय संविधान एक तरह से मानवाधिकारों का प्रतिनिधि रूप भी है। तो ये जो मानवाधिकार घोषणा पत्र का दुनिया के अधिकांश देशों ने जिस रूप में स्वीकार किया, भारत में जब इस दिशा में और प्रगति हुई, विचार विमर्श हुआ, तो 1993 का वो वर्ष था जब ह्यूमन राइट्स एक्ट पास किया गया और उसके तहत ह्यूमन राइट्स कमीशंस की स्थापना की गई। और संयोग से जो आज हमारी चर्चा है इसमें हमने 3 अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आजीवन उसमें काम किया है उन्हें आमंत्रित किया है। देखिए, संयोग से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे साथ में है और अक्सर पुलिस पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगते रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। एक आईपीएस के रूप में आपने अनेक पोजीशंस में सेवा की, जिसकी विस्तार से चर्चा जब मैं उनका आमंत्रित करूंगा तब बात करूंगा। फिर रोल आता है जुडिशरी का। जब अखबारों में खबरें छपती हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्वतः संज्ञान न्यायपालिका लेती है और उस पर आगे कार्रवाई होती है। तो मानवाधिकारों के संरक्षण का बहुत बड़ा दायित्व हमारी न्याय व्यवस्था पर भी है। तो न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में हमने जस्टिस एन.के. जैन साहब को आमंत्रित किया है। और जैसा अभी उड़ा साहब ने बताया कि योगराज शर्मा जी जो सक्रिय मीडिया कर्मी रहे और अब एक्टिविस्ट के रूप में वो मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमने 3 क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में न सिर्फ शोध अनुसंधान किया है बल्कि इन सारे परिदृश्य को बहुत निकटता से देखा है, तो हम उनसे जानेंगे कि इस दिवस पर इसकी क्या महत्ता है। हालांकि इस वर्ष जो थीम दी गई है, क्योंकि प्रतिवर्ष यूएनओ की तरफ से कुछ थीम दी जाती है इस तरह के आयोजनों के लिए, तो इस वर्ष की जो थीम है फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस फॉर ऑल, स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय। तो मुझे लगता है आज का जो हमारा विषय है मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें यह विषय किसी न किसी रूप में समाहित है। आइए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर एम.के. देवराजन साहब को। भारतीय पुलिस सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे। आप 1997 बैच के राजस्थान कैडर के पुलिस अधिकारी हैं और आपने अलग अलग पोजीशंस में, बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशंस, डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो के रहे, डीजी ट्रेनिंग रहे, उसके अतिरिक्त आपने एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, एसपी
आदि अनेक पोजीशंस के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम किया है और एक एफिशिएंट ऑफिसर के रूप में आपने अपनी विशेष ख्याति अर्जित की है। अब पुलिस महकमे में कुछ नए या कुछ नवाचार करने की दिशा में भी आपने महत्वपूर्ण काम किया। आपका जो पीएचडी का विषय था बड़ा रोचक है, एटीट्यूडनल चेंजेस फॉर बेटर पुलिसिंग। पुलिस व्यवस्था को हम बेहतर करने के लिए किस प्रकार से उनके एटीट्यूड में परिवर्तन ला सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये ऐसे विषय हैं, जब भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है तब इन्हीं विषयों पर व्यापक चर्चा होती है। जब मैं विश्वविद्यालय में सेवारत था तो हमने पुलिस पब्लिक इंटरफेस एक आयोजित किया था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च का जो है दिल्ली में, उनके साथ कोलैबोरेट करके, तो वहां भी इस तरह की बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो आपने इसी विषय पर अपनी पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। तो आप देखिए, पुलिस अधिकारी जिसके लिए प्राय यह कहा जाता है कि वो क्रिमिनल्स के साथ या उनके साथ डील करता है, लेकिन उनमें एक अकादमिक टेस्ट भी हो सकता है, उनकी अकादमिक प्रवृत्ति भी हो सकती है। उस रोल के रूप में यदि हम देखें तो डॉक्टर देवराजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। आपके अनेक रिसर्च जर्नल्स देश के और विदेशों के अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग पर जो एक माइक्रो मिशन हमारे यहाँ एक संचालित किया गया था, उसके आप ग्रुप लीडर के रूप में भी थे। वर्षों तक आपने उसके साथ जुड़े रहे और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनको उसमें कॉप्ट किया गया है। आपने इंग्लैंड से पुलिस कमांड कोर्स, इसको भी वहाँ 1993 में आपने कंप्लीट किया था, और अमेरिका में इसी पुलिसिंग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी आपने पार्टिसिपेट किया। पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक एजुकेटर के रूप में, शिक्षक के रूप में भी आपका व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बिट्स पिलानी में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में, एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में आपने काम किया। इसके अतिरिक्त हमारे देश के जो पुलिस से जुड़े हुए नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस अकादमी, और राजस्थान का जो हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ पर भी आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आपने जो कुछ काम किया, जब इनको राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन का सदस्य मनोनीत किया गया, तो आपने जिस तरह से काम किया उसको लेकर के राज्य सरकार की नीतियां तक प्रभावित हुई थी। तो मैं विस्तार से उसकी बात नहीं करूंगा। हम चाहेंगे कि डॉक्टर देवराजन स्वयं जो कुछ अनुभव आपके एक पुलिस अधिकारी के रूप में और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूप में आपने जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया है, वो हमारे अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर देवराजन। Thank you very much, Dr. Banawat. Respected Justice N.K. Jain Sahab, other participants. मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, बनाओ साहब? सर मेरे ख्याल बाइलिंगुअल रहे तो ठीक है, बाकी जो जिसमें कंफर्टेबल है हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों में तीनों में कंफर्टेबल है। जी जी, as you like and better bilingual. जी। Please allow me to share my screen. मैं आज मीडिया और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्यादा थियोरेटिकल बात नहीं करूंगा। मैं एक केस स्टडी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। एक मीडिया रिपोर्ट से कितना आउटकम आ सकता है वो मैं आपको आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे से बहुत ज्यादा अनुभवी डॉक्टर एन.के. जैन मीडिया और ह्यूमन राइट्स के जो सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, मेरे को उसमें बात करना उचित नहीं रहेगा। कैन आई शेयर द स्क्रीन प्लीज? तो प्रियंका, यदि आप सुन रही हैं, आप शेयर कर सकते हैं शायद स्क्रीन, एक बार चेक करें। प्रियंका, आप बैकग्राउंड से स्क्रीन शेयर कर दो। जी सर। हाँ, आप पीपीटी शेयर कीजिए। हाँ, मैंने सर को शेयरिंग राइट दे दिए हैं। नहीं, मैं शेयर कर लूंगा। मुझे सर मैंने ना सर से पूछा था, सर डिनाइड। Is the screen visible?
Hello. It's visible, but PPTs are not visible. I guess having some network issue. That's why. मैं एक बार और कोशिश कर देता हूँ, अदरवाइज यू कैन शेयर इट. Yes, sir. Sure. Is it visible now? No, sir, it's not visible. तो आप शेयर कर दीजिए. Okay, sir. Priyanka, you share it from your side. Yes, sir. Sure. Next slide, please. Yes, sir. Can I operate it from here? No. Next slide, please. Yes, sir. Sure. ये मैं एक सुओमोटो कॉग्निसेंस के कहानी पसंद कर रहा हूं इधर. अब चाहे वो अदालत है या एक कोई ह्यूमन राइट्स बॉडी है या कोई अधिकारी है, वो स्वप्रसंज्ञान लेके कोई मामला अपने हाथ में ले लेते हैं. उसमें उनको एक सेंस ऑफ ऑनरशिप है, जिसके वजह से ऐसे मामले में कार्यवाही तुरंत हो जाता है और परिणाम भी अच्छा परिणाम निकलता है. मैंने ये पुलिस में भी रह के देखा है और कोर्ट्स में हम देख लेते हैं जो PIL वगैरह सुओमोटो कॉग्निसेंस लेते हैं, उसमें कार्रवाई सबसे तेजी से होता है एंड आउटकम भी बेटर हो जाता है कंपेयर टू the things on which the cognizance is taken on complaint by any party. तो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए स्वप्रसंज्ञान लेने के लिए सबसे बड़ा सोर्स मीडिया रिपोर्ट्स है, स्पेशली प्रिंटेड मीडिया रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आ जाते हैं, न्यूज आइटम्स आ जाते हैं, इसके आधार पर ये स्वप्रसंज्ञान लिया जाता है. ये इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी करते हैं. एवरी ऑफिसर गेट्स उनके डिपार्टमेंट से संबंधित उस दिन का पेपर कटिंग उनके सामने आ जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी आ जाते हैं और उसके अनुसार आजकल सेंसिटिविटी मीडिया के तरफ है सबका, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल क्लास or whether it is anybody else, administrators, सबका sensitivity बहुत ज्यादा है. And even ordinary politicians also मीडिया में जो रिपोर्ट आ जाता है and इनमें ज्यादातर ह्यूमन राइट्स से संबंधित रिपोर्ट्स होता है, उस पे वो एजिटेशन कर सकता है, अथॉरिटीज के साथ टेकअप कर सकता है. नेक्स्ट प्लीज. अभी मैं इसी तरह का एक स्वप्रसंज्ञान मैंने लिया था एक प्रेस रिपोर्ट के आधार पर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बारे में आपको मैं कहना चाहता हूं. यह है नेक्स्ट प्लीज. राजस्थान में सिलिकोसिस नाम का एक बीमारी के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है इंडिया में. इंडिया में के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज में भी जितना काम हुआ है सिलिकोसिस पे, मेरे ख्याल में राजस्थान में हुआ है. सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है. हमारा जो सिलिका कंटेनिंग पत्थर है, जैसे क्वार्ट्स है, सैंडस्टोन है, फ्लिंट, स्लेट, इस तरह का क्वार्ट्स, इस तरह का जो पत्थर है, उसके जो माइनिंग और उसके इंडस्ट्रियल यूज, इससे बहुत बारीकी के वो डस्ट निकलता है, उससे भी हो जाता है.
एंड ये माइनिंग में भी हो जाता है, माइनिंग में सबसे कम हो जाता है, माइनिंग और बिल्डिंग में क्या, बाकी इसका जो प्रोसेसिंग हो जाता है उसमें इसका ये बीमारी आने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। दुनिया के सबसे जो ओल्डेस्ट ये हमारी 19 में भी सेट किया गया है। एंड आप लोगों को मालूम होगा हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक जो मिनरल है वो है सिलिका, अलग अलग फॉर्म में है। 15% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सिलिका, लेकिन उससे हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसका जो फ्रैक्चरिंग हो जाता है प्रोसेसिंग से, उसका कटिंग हो जाता है, उसे डस्ट निकल से उससे खतरा पैदा हो जाता है। एंड वो सबसे बड़ा खतरा है उसका जो अंदर जाके वो वन वे ट्रैफिक, वो डस्ट अंदर जाता है। इवन ए मास्क N95 mask can't prevent that dust from going inside. वो जाते हैं, वो लंग्स में जमा हो जाते हैं, लंग्स फाइबरस हो जाते हैं, फाइनली जाके वो लंग एक पत्थर जैसे हो जाता है। और वो आदमी जिसको ये मिल जाता है, ये बीमारी हो जाता है, वो इसी से उनका मृत्यु हो जाता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी स्लो एंड पेनफुल डेथ। नेक्स्ट प्लीज। एंड अगर किसी को सिलिकोसिस से उनको टीबी होना है 20 से 25% बढ़ जाता है। ये जो सिलिकोसिस का बीमारी अभी था, अभी भी है, अभी ये बहुत इसका मेन कारण है इसका मैकेनाइजेशन। अगर आप जो माइनिंग कर रहा है उसमें भी मैकेनाइजेशन आया, प्रोसेसिंग का मैकेनाइजेशन आया है, जिसके वजह से राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी है, माइनिंग एरियाज में, प्रोसेसिंग एरिया में वहां 35 और 60 के बीच में मेल पॉपुलेशन आपको मिलेगा नहीं है। These people are referred to as widows villages. It is a Himalayan human tragedy. डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये होता था, लेकिन काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि वहां जो एजेंसी है और पब्लिक है ज्यादा सतर्क है। हमारे देश में जो पुअर जो वर्कर्स है, एंड इस जो सिलिकोसिस प्रोन जो इंडस्ट्रीज है उसमें पुअरेस्ट ऑफ पुअर वर्कर्स आ जाता है, उनका लाइफ को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए प्रिवेंट नहीं कर रहा है। प्रिवेंशन के लिए कई तरीके हैं। ये सबसे पहले इंडिया में रिपोर्ट हो गया 1948 में कोलार गोल्ड माइन में, लेकिन कोलार गोल्ड माइन में इसके पहले भी करीब 10 साल पहले भी एक ब्रिटिश जर्नल ने कोलार गोल्ड माइन में ये बीमारी होने का आर्टिकल पब्लिश किया, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उसको दबा दिया। नेक्स्ट प्लीज। ये बीमारी कोई डॉक्टर अगर देख लेते, डिटेक्ट कर लेते हैं, उनका कई एक्ट्स में जिम्मेदारी है, वो उनको वेरियस अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है, लेकिन इनका रिपोर्टिंग भी बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राजस्थान में जो सिलिकोसिस का जो बीमारी है
एक तो माइनिंग से हो जाता है, वो 3 जो अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स है, सैंडस्टोन है, क्वार्ट्ज है और ग्रेनाइट है, ये तीनों बहुत ज्यादा माइंस राजस्थान में है। गवर्नमेंट ने 1000 माइनिंग दिया है, उसमें 19,000 के आसपास माइनिंग लीज सिलिकोसिस कोसिंग माइन ये है। फिर ये क्वार्ट्ज का पाउडर बनाते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, वो एक बड़ा इंडस्ट्री है। देयर आर मोर देन 5000 यूनिट्स हियर। और ये मूर्ति बनाना, वो सजावटी के जो घर में मंदिरों में सजावटी के लिए जो पिलर्स जाली वगैरह बनाना, झरोका वगैरह बनाना, इससे भी सबसे ज्यादा इससे हो जाता है। इससे करीब 5-6 महीने के अंतर तक एक आदमी को सिलिकोसिस हो सकता है, जबकि नॉर्मली एक माइन में 10 साल के पहले एक भी केस नहीं हुआ है। नॉर्मली 20 से 30 साल के अंदर हुआ है होते। फिर हमारे नॉट ओनली फॉर द वर्क, पॉपुलेशन को भी वो की वजह से ये बीमारी हो सकता है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में भी होता है, लेकिन बहुत कम है। जेम कटिंग एंड पॉलिशिंग भी में भी राजस्थान में होता है। बाकी जगह स्लेट जो इंडस्ट्री है एक मेजर ये है। कुल मिला के 3.5 करोड़ लोग यूनिट्स में काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक आदमी का सिलिकोसिस का ऊपर वो है उनका लंग, देखो आपको पत्थर जैसे दिखता है, वो नोड्यूल्स बनता है और पूरा जाके उनको सांस लेने का क्षमता कम हो जाता है। और 1-2 आदमी का फोटो मैंने दिया है, आप देख लीजिए, अस्थि पंजर जैसे है, जस्ट स्केलेटन्स, एंड इट्स एंड दे विल गो थ्रू एंड फुल्ली स्केलेटन के आदमी वेरी पेनफुल डेथ उनको हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। राजस्थान के जहां हम बात करें, राजस्थान में 1950 से लेकर जो मेजर कंपनीज है, राजस्थान का एक निर्भाग्य ये है, हमारा जो सिलिकोसिस कोसिंग जो जितने भी माइनिंग हो जाते हैं वो स्मॉल स्केल क्षेत्र में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रहता है, जिनका कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, और इतने ज्यादा माइन से, और एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी एनफोर्समेंट के तरफ कोई ध्यान भी नहीं देते, और ध्यान दिया तो भी इतना ज्यादा माइन में एनफोर्समेंट करना उनको बहुत दिक्कत है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ने कई बार यह डिटेक्ट किया है 1950 से लेकर अब तक। वो वहां तक सीमित रहा, वो लोग डिटेक्ट कर देते हैं और कोई इस तरह का कॉन्फ्रेंस में या विदेश में जाकर कोई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन लेते हैं, लेकिन इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए और उनको कोई राहत देने के लिए। एंड डॉक्टर्स भी इसका करते नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया का बाकी जो स्टेट्स है वहां भी हालत इससे भी खराब है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें सबसे पहले कार्यवाही शुरू हो गया अपना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा। एक प्रसार नाम का पीपल्स रिसर्च एंड सोशल रिसर्च सेंटर एक एप्लीकेशन फाइल किया नेशनल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सुप्रीम कोर्ट में इन 2006 में दैट दिल्ली के लाल कुआं एरिया में सिलिकोसिस के वजह से लोग मर रहा है, इस पर ये आप आगे चला, इसका पीछे वाला स्लाइड प्लीज, इस पर इसके भी पीछे वाला स्लाइड। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, 14 साल से हियरिंग चल रहा है, लेकिन कोई 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर के अलावा अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई खास कार्यवाही हुआ नहीं है।
पहले उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच किया था, उनका कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होकर सुप्रीम कोर्ट में गया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उसमें पार्टी बना हुआ है। उन्होंने अपने आप को इम्प्लीड किया है। राजस्थान का जब तक सवाल है, यहाँ 2009 में हमारा जोधपुर में एक एनजीओ है MLPC, माइन लेबर प्रोटेक्शन काउंसिल ट्रस्ट, उन्होंने एक कंप्लेंट किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। यहाँ हमारा सूरसागर एरिया में काफी लोगों का डेथ सिलिकोसिस से हो रहा है। तो वहां से एक टीम आया, टीम कोई मेडिकल प्रोफेशनल का नहीं था, पुलिस वाले टीम आया, एक DYSP और इंस्पेक्टर। वहां KN चेस्ट हॉस्पिटल गया, वहां का रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने करीब नेक्स्ट प्लीज 22 डेथ्स बाय सिलिकोसिस एंड 52 लिविंग पेशेंट्स का एक लिस्ट बनाकर ह्यूमन राइट्स कमीशन को दे दिया है। और उसके आधार पर उसके पहले 2009 में जो PIL में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था, अगर किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस पाया जाता है तो उनको फ्री इलाज स्टेट गवर्नमेंट दे देंगे और ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कॉम्पनसेशन ऑर्डर करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट दे देंगे। तो उसका देखते हुए राजस्थान वो सिर्फ डिसीज्ड पर्सन के जो डिपेंडेंस के लिए है ऑर्डर, उसको देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपया 21 आदमी को दे दिया। और जो नेक्स्ट जो 22 का कोई ज्यादा उनको पता वगैरह नहीं मिला, तो 21 को ही मिला। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ है, ना राजस्थान में ना ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्तर पर। और इसके प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हमारा दूसरा एक एनजीओ है डांग विकास संस्थान, करौली में काम करता है। इन्होंने वहां का जो सस्पेक्टेड सिलिकोसिस पेशेंट्स है उनका जो एक्सरे लेके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स सेफ्टी नागपुर को भेजना शुरू कर दिया। आज वो इंस्टीट्यूट अस्तित्व में नहीं है, 3 साल पहले वो बंद किए करके दूसरा अहमदाबाद वाला वो इंस्टीट्यूट में मर्ज कर दिया। उनके कई रिपोर्ट है, लेकिन फर्स्ट रिपोर्ट में ये आया कि करीब 70 जो केसेस 77 केसेस उन्होंने एग्जामिन किया, उसमें 53 को सिलिकोसिस पाया गया। इसके बाद भी कई केसेस उन्होंने टेकअप किया है। नेक्स्ट प्लीज। अब सुओमोटो कहानी और प्रेस का रोल इधर आ जाता है। ये जो रिपोर्ट्स आया है उसके आधार पर एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल आया, करौली एरिया में सिलिकोसिस नाम का एक बीमारी है जिसके वजह से कोई ये लाइलाज बीमारी है जिसके वजह से काफी लोगों का डेथ हो रहा है। मुझे सिलिकोसिस क्या है कुछ मालूम नहीं था, इसका स्पेलिंग भी मालूम नहीं था, और मैंने इसमें स्वप्रसंज्ञान लेके एक मामला दर्ज कर दिया और उसके आधार पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ से एक्सपर्ट्स को बुला के इसका समझने के लिए कोशिश किया। आश्चर्य का बात यह है, यहाँ का तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल और स्टेट टीबी ऑफिसर जो आज इसका नोडल ऑफिसर है, उनको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और फिर एक एनजीओ के जो मैंने जिक्र किया था माइन लेबर प्रोटेक्शन काउंसिल, उनसे मैं ज्यादा समझ लिया। उसके बाद कार्यवाही शुरू किया और 2013 से लेकर 2016 में जब ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, 4 साल काफी काम इसमें किया। ये नॉर्मली ह्यूमन राइट्स कमीशन और जो स्टेट गवर्नमेंट का 36 का अंदर है, लेकिन ये ऐसे एक मामला है जिसमें हमने मिलजुल के अच्छा तालमेल के साथ काम किया है, मीटिंग्स किया है। मैं कई मामले इश्यू बेस्ड और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड दर्ज कर दिया और उसके आधार पर मैंने चीफ सेक्रेटरी के लेवल से लेके नीचे कलेक्टर लेवल में मीटिंग्स किया।
और कार्रवाई वगैरह करने से वजह से यहाँ काफी अच्छा रिजल्ट मिला, और इसको 20 साल से डील कर रहा है। यहाँ क्यों रिजल्ट मिल रहा है, हमें क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर इसको स्टडी करने के लिए यहाँ आया। उसका कारण भी मैं बता दूंगा। अब इसका परिणाम ये हुआ, राजस्थान में सबसे पहले ये इसको सर्टिफिकेट देने के लिए, सिलिकोसिस है, किसी को सिलिकोसिस है, नॉर्मली कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसीज है, उस आदमी को अपना एम्प्लॉयर के खिलाफ है लेबर को, लेकिन राजस्थान में ये संभव नहीं है, और मोस्टली इंडिया में भी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। There is no existence for the labor. Nobody can prove that I worked for Professor Banawat या Justice Day, because सारे कानून का उल्लंघन हो रहा है इसमें। तो ऑल्टरनेट व्यवस्था क्रिएट किया गया, एंड राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाई करने के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए, एक बोर्ड एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 1967 में बनाया था। उन्होंने एक केस भी सर्टिफाई नहीं किया 2013 तक है, जब तक राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरवीन किया। उसके बाद हमारे रिकमेंडेशन पे पहले 7 बोर्ड बनाया, 7 मेडिकल कॉलेज होता था उस वक्त, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मैंने उनको कहा ये पर्याप्त नहीं है, राजस्थान इतना ज्योग्राफिकली काफी बड़ा एरिया है। मैंने मेरे रिकमेंडेशन पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज बोर्ड को अपलेट बोर्ड कर दिया, और हर जिले में इसका बोर्ड बनाया। बाद में एक कोटपुतली में भी बनाया। अब कुल मिलाकर 41 बोर्ड्स है, और दिसंबर 3 को इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट दिया गया है, और वो स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर, नेक्स्ट प्लीज, स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर इतना पब्लिसिटी हुआ अखबार में, तत्कालीन चीफ जस्टिस इससे काफी प्रभावित हुआ, और उन्होंने इसके आधार पर स्वप्रसंज्ञान लेके अगेन मीडिया रिपोर्ट पे स्वप्रसंज्ञान लेके मामला दर्ज किया। उसको कोर्ट को असिस्ट करने के लिए मुझे बुलाया। करीब 1 साल तक मैं कोर्ट में अपियर होते रहा, जिसका ये परिणाम रहा काफी कार्यवाही राजस्थान में हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। एंड मेरे जो स्पेशल रिपोर्ट था उसमें 59 रिकमेंडेशन थे, एंड राजस्थान हाई कोर्ट has started following up that, and that resulted in lot of action by Rajasthan government also. Finally, जस्टिस जैन साहब को मालूम है, वो 2 ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन रहा है। नॉर्मली हमारे जो रिकमेंडेशंस वगैरह पे कोई ज्यादा काम नहीं होता है, और ऐसा कभी नहीं होता है कोई बड़ा रिपोर्ट है उसमें 100% रिकमेंडेशन कोई एक्सेप्ट करते हो। लेकिन ये ऐसे एक मामला है, इसमें 100% नहीं है, 120% कंप्लायंस हुआ है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी रिलीज कर दिया है। न्यूमोकोनियोसिस मींस एनी ऑक्यूपेशनल डिसीज, एक तो सिलिकोसिस है, आस्बेस्टोसिस है, कई अलग अलग जो ऑक्यूपेशन में अलग अलग बीमारियां हैं। एंड 2 साल पहले राजस्थान का चीफ मिनिस्टर ने अपने बजट में ये घोषणा की, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सिलिकोसिस का प्रिवेंशन के लिए और रिसर्च के लिए, और इसके लिए मेडिकल एस्पेक्ट्स पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक रिसर्च कर रहा है, एक इंजीनियरिंग एंड प्रिवेंशन एस्पेक्ट पर MNIT एक रिसर्च कर रहा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज जयपुर social aspects and impact of our Rajasthan government's policy so far इस पे कर रहा है। उनका रिपोर्ट भी आया है, मैंने उसमें काफी कमेंट्स दिया है, उस पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। बाकी MNIT का और एसएमएस का भी रिसर्च को गाइड करना, एज वेल एज डायरेक्टरेट लेवल पे उनका अप्रूवल के लिए जो कमिटी है उसमें भी मैं शामिल हूँ। एंड ये सारे जो कार्रवाई हुआ है, ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया के जो पब्लिसिटी है। एक अधिकारी है और एक पॉलिटिशियन है, वो मीडिया पब्लिसिटी से बहुत डरते हैं, एडवर्स पब्लिसिटी कोई चाहता ही नहीं है, इसलिए उनका सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां क्यों हमें रिजल्ट मिला है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनके
पास बहुत साधन है और फंड्स है, उनको क्यों नहीं मिला, उसका कारण है वहां कंप्लेंट बेस्ड मामला चलता है। उन्होंने भी 1990s के एंड से वो इस पे काम कर रहा है और उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट पार्लियामेंट को दिया 2011 में। 4 साल बाद वो पार्लियामेंट में देखा, एक कार्रवाई नहीं हुआ उसमें, और उन्होंने इसी दिन 2016 को ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर एक पब्लिकेशन लाया, NHRC इंटरवेंशंस ऑन सिलिकोसिस। उसके मुताबिक राजस्थान के बाहर के जो जिलों, बाहर के स्टेट्स में कुल मिला के उन लोगों ने 266 केसेस में 8 करोड़ 23 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था उस वक्त तक। नेक्स्ट प्लीज। राजस्थान गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बहुत छोटे अवधि के लिए 2-3 साल के लिए जो काम किया था, तब तक 10,000 केसेस डिटेक्ट करवा चुके थे, इंक्लूडिंग 250 केसेस ऑफ डेथ, और 104 करोड़ रुपए राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऑलरेडी दिलवा चुके थे। अभी आज का बात कर रहा है तो एक तो इसके लिए सिस्टम्स बनाया गया है। आज कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही मित्रा केंद्र में जाके उनको रजिस्टर करना है। फाइनली इट इज एक्चुअली ए वेरी ऑर्गेनिक मॉडल, और फाइनली ये पूरा हो जाएगा कि पैसा और इसके अलावा कई बेनिफिट्स उनको अपने पास पहुंच जाएंगे। अभी तक इसका फायदा 42,000 फैमिलीज को मिल गया है और करीब 1,600 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट ने कैश कॉम्पनसेशन दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन 30 साल पूरा किया था 2 महीने पहले, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज लाए थे, उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने करीब 22 लाख केस डिस्पोज किया 30 साल में। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। एंड उनमें कुल मिला के 230 करोड़, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, 230 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन रिकमेंड किया है। अब कितना दिया है ये मालूम नहीं है। हमारा ये देखो, एक ही मामले में एक पेपर रिपोर्ट के आधार पर जो हुआ है उससे कितना गुना, 230 करोड़ के अगेंस्ट 1,600 करोड़ दिया गया, और आज ऑटो पायलट पे है। सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट प्लीज। ये राजस्थान न्यूमोकोडिसिस पॉलिसी में बहुत फायदा उनको दिया गया है। वन टाइम जो आदमी को जो बीमारी सर्टिफाई हुआ है न्यूमोकोडिसिस, उनको तत्काल 3 लाख रुपया दिया जाता है, और उनका डेथ होने पर उनके जो वारिश है उनको 2 लाख रुपया और दिया जाता है। फुल्ली डिसेबल्ड आदमी का पेंशन मिल जाता है, BPL बेनिफिट मिल जाता है, फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, और काफी सारे बेनिफिट इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है एक जो मामला, ये एक छोटा सा पेपर रिपोर्ट से कितना, मेरे ख्याल में इंडिया में इस तरह का वो एक बड़ा काम एक पेपर रिपोर्ट में हुआ हो, बहुत कम उदाहरण शायद मिल सकता है। बाकी मैं 2 स्लाइड्स और है। एक अन्य जो पेपर रिपोर्ट पे आधार पर जिस तरह का काम हम करते थे, एक तो था रास्ता रोको। बिकॉज आपको मालूम है किसी को कोई भी परेशानी है उसका एक ही इलाज है, रास्ता रोको। रास्ता रोकने से पानी नहीं है तो पानी आ जाएगा, बिजली नहीं है तो बिजली आ जाएगा, और आदमी मर गया तो आदमी जिंदा हो जाएगा। ये हालत है, एंड पुलिस वाले उसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। हर आदमी जो सामने रास्ता रोक रहा है उस कोई शक्ल नजर तो होल्ड कर देते हैं। यही दर्ज करना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम आधा सोल्यूशन हो जाता है, और उसमें चालान करवा दिया, प्रॉब्लम पूरा हो जाता है। मैं शुरू में राजस्थान के 23 डिस्ट्रिक्ट का हम 2 ही मेंबर थे एंड जिम्मा था, मैं ऐसे हालत लाया, वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स में रास्ता रोकना एकदम बंद हो चुके थे। अगेन मेरा ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पेपर में जो रिपोर्ट आते हैं, तो इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। दूसरा एक
इम्पोर्टेंट जो काम हुआ, मेरा रिटायरमेंट के 3 साल पहले जनवरी में एक रिपोर्ट आया एक हिंदी अखबार में, जयपुर सिटी में जनवरी के फर्स्ट वीक में हजारों केसेस दर्ज हुआ है। ये केसेस सारे हैं वो फर्स्ट फोर्टनाइट का नहीं है जनवरी का, ये पिछले साल का नवंबर और दिसंबर का है। पुलिस का एक आदत है, ये आंकड़ों के ऊपर चलता है, पुलिस नहीं है सारे, गवर्नमेंट इवन मीडिया भी आंकड़ों के पे इतना बल दे देते हैं जिसके वजह से बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस पुलिस में भी हो जाता है, बाकी डिपार्टमेंट में भी हो जाता है। तो आंकड़ा बेहतर करने के लिए ये लोग जो नवंबर से जो रिपोर्ट आते हैं वो बहुत जरूरी है, इक्का दुक्का दर्ज कर देते हैं, बाकी अपना दराज में रखते हैं। और दिसंबर में तो बिल्कुल ही दर्ज नहीं करते हैं। एंड इससे मैंने ऐसा देखा, रेप केस, एक्सीडेंटल जो डेथ का केस है और थेफ्ट केस सब ये करते हैं। अब आप लोग पढ़ता होगा, मीडिया में ही मैं अभी पढ़ता है, आजकल बहुत केसेस में मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल द्वारा कॉम्पेंसेशन इसलिए नहीं देते, केस देरी से दर्ज हुआ है, वो परिवादी के कारण नहीं है, पुलिस अपना आंकड़ा सुधारने की वजह से। इसमें मैं 3 साल तक राजस्थान का उस वक्त 750 के आसपास पुलिस स्टेशन है, 750 पुलिस स्टेशन में जनवरी में केस दर्ज करके एक केस फॉलो अप कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस एक बार तो करीब करीब बंद ही हो चुका है। मुझे अभी खबर है वापस वही प्रैक्टिस शुरू हुआ है। अनदर थिंग इज कास्ट पंचायत, कास्ट पंचायत की वजह से ये कास्ट पंचायत, खाप पंचायत वगैरह सिर्फ हरियाणा और ईस्टर्न यूपी में नहीं है, राजस्थान में भी कई एरिया में ये बहुत ज्यादा अन्याय कर देते हैं। इन पे भी कार्रवाई करने में पुलिस को थोड़ा सा हेसिटेशन है, सो इसलिए ये केसेस भी हमने जो भी रिपोर्ट आ जाते हैं ये सारे पेपर रिपोर्ट के आधार पर ही है, हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था। पुलिस एसएस का कंप्लेंट्स ऑफ कोर्स आ जाता है, इसके अलावा हम लोग भी जो पुलिस एसएस जो कस्टोडियल डेथ है इसका जो रिपोर्ट अखबार में आ जाता है उस पर कार्रवाई किया। ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज पे भी कहा, जहां प्रॉब्लम देखा गया वो वहां कार्रवाई किया। एनवायरमेंटल इश्यूज पे कार्रवाई किया है। ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज पर खासतौर से जो फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज वगैरह है वहां काफी काम किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट का काफी केसेस किया है और उसके हमारे रिकमेंडेशन पे उस पे जो नॉर्मली 5 लाख रुपए देते थे डेथ पे, वो उन्होंने 10 लाख रुपए देना भी शुरू कर दिया। प्रिवेंटिव स्टेप्स लिया नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस के काफी केसेस आया है और मैं पुलिस ऑफिसर था, इसके वजह से मैंने जो पॉइंट आउट किया उसके आधार पर कई केसेस दर्ज हो गया और उनमें चालान भी हो गया है। अटैक ऑन पब्लिक सर्वेंट्स का कोई भी रिपोर्ट मिल जाता है, मैं कॉग्निजेंस लेते थे, वो इसलिए लेते थे क्योंकि इसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल पीपल या कोई जो माफिया के लोग है या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, उसमें पुलिस को अगेन कार्रवाई, चाहे वो पुलिस वालों के ऊपर भी अटैक हुआ, कार्रवाई करने में थोड़ा सा हेसिटेशन था, इस वजह से इनका ये लेते थे। एंड लास्ट स्लाइड प्लीज। मेरा 2-3 सुझाव है, पॉइंट है। एक तो ये है मीडिया के वजह से, मैंने कुल मिला के ये कहने का कोशिश किया है, मीडिया का वजह से चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे है या वो हमारा जो हायर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी है, बिकॉज वहां भी जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो लेते हैं मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट। और इसी तरह का ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये काफी मामला दर्ज हो जाता है और उसमें कार्रवाई होता है, उसको देके हमारा रजिस्ट्रेशन काफी बढ़ जाता है। हमने देखा, हम कार्रवाई करना शुरू किया, उसका पब्लिसिटी शुरू हुआ, तब इसका हमारा रजिस्ट्रेशन भी काफी बढ़ गया है। That means a Human Rights Commission is able to solve some problems. इसके अलावा
ये आप जानते हैं सरकार में कई बीमारियां हैं, पब्लिक सर्वेंट्स में कभी बीमारियां काफी मिसचीफ हो जाते हैं और कवर अप हो जाते हैं, डिलेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन और कोई कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो ये डिले वगैरह हो जाता है। एक आदमी का कोई काम कहीं पेंडिंग है बिना कोई पैसा, अगर हमने ये ले लिया है बिना कोई पैसा, करीब जल्दी काम हो जाता है। And this is again, many of these things are based on media reports. सिलिकोसिस में इतना काम इसलिए हुआ है, हमने एडवोकेसी सही तरीके से किया। उस एडवोकेसी में सबसे बड़ा भूमिका प्रेस ने किया है, क्योंकि हमारे जो साथ जो काम करते थे एनजीओस, उनके प्रेस कॉन्टैक्ट्स ने इतने अच्छे स्टोरीज पब्लिश किया है और उसी वजह से इवन राजस्थान हाईकोर्ट भी इसमें कार्रवाई करने के लिए आया, जिसके वजह से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट में जो काम हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर हो जाता है, इंडिया के में ये पुअर लोगों का जो डेस्टिनी कुछ अलग हो जाता है। एक सजेशन मेरा मीडिया बंधुओं से है, ये मीडिया आज लोकलाइज्ड है, हर संभाग में हर एक दो जिले में अलग अलग एडिशन आ जाता है, एंड ये छोटे छोटे इश्यूज जिसपे कार्रवाई करने लायक है वो लोकल मीडिया में आ जाता है। इवन स्टेट मीडिया का जो लोकल एडिशन में आता है वो जयपुर तक कम ही पहुंचता है। मैं जब भी कैंप आउट करने के लिए बाहर जाता है, वहां दो या 3 दिन देता है, 3-4 केस वहां से सुओ मोटो दर्ज कर देते हैं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। तो इस तरह का अच्छा कार्रवाई करने लायक जो रिपोर्ट है उनको एक तो संबंधित अधिकारियों को भी भेजना चाहिए, क्योंकि कुछ अधिकारी भी संवेदनशील है, कार्रवाई करेंगे, और कुछ इस तरह का कमीशंस को भी भेजना चाहिए। और कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ मामलों में हमें प्रेस का आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोऑपरेशन नहीं था, तब आगे बढ़ने के लिए प्रेस का कोऑपरेशन का जरूरत था, लेकिन वो कोऑपरेशन मिलते नहीं है, वो मिल गया तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने किस तरह से मीडिया में प्रकाशित एक छोटी सी रिपोर्ट सरकार की नीतियों तक को प्रभावित कर सकती है, उसके विस्तार से जानकारी दी, और मीडिया में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कितने पक्षों पर खबरें प्रकाशित होती रही हैं और किस तरह से मानवाधिकार आयोगों ने, न्यायालयों ने स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की है, और मानव अधिकार के जो हमारे यहाँ कमीशंस बने हुए हैं उन्होंने किस तरह से समाधान प्रस्तुत किया है, इसका एक विचारपरक विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपका। और अब अगले चरण में हम आमंत्रित करेंगे योगराज शर्मा जी को। जैसा पूर्व में बताया गया, योगराज जी एक सक्रिय पत्रकार भी रहे हैं। देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आपका जुड़ाव रहा। तो योगराज जी पत्रकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी, क्योंकि आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आप आज की दिल्ली नामक एक पत्रिका के मुख्य संपादक हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, सहारा समय, इंडिया न्यूज़ चैनल, इंडिया न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ चैनल, हरिभूमि, वीर अर्जुन, बालहंस, नंदन आदि अनेक पत्रिकाओं में। और आपने देखा पत्रिकाएं मेन मुख्य धारा के अखबार, बच्चों की पत्रिकाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व के अनेक प्रमुख पहलू हैं पत्रकार के रूप में, और चूंकि आपने न्यूज़ चैनल के साथ भी काम किया तो वहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर उस रूप में भी आपने अपनी विशेष पहचान बनाई। 3 दशक से आप काम कर रहे हैं पत्रिकाओं और चैनल्स के साथ। फिर आपने 2 विशेष जो आपने आपके व्यक्तित्व में या जो आपने कंट्रीब्यूट किया, एक आपने स्थापित किया वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में आपने महत्वपूर्ण काम किया, और एक आलम्बन चैरिटेबल ट्रस्ट, इनकी स्थापना के माध्यम से भी आपने उपेक्षित वर्ग जो हैं उनके अपलिफ्टमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। तो मैं भाई योगराज शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर जो कुछ आपके अनुभव हैं वो साझा करें। योगराज जी।
बहुत बहुत धन्यवाद और सबका अभिनंदन करता हूं जो सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ इस वेबिनार पर जुड़े हुए हैं। और इस विषय को मेरा अपना जो एक एंगल है, मैं हिंदी में बात करूं, ठीक है, चलेगा? जिसमें आप सहज महसूस करें, कीजिए, कोई जी दिक्कत नहीं। बिल्कुल। असल में क्या है कि 28 साल हिंदी की कमाई खाई है, हिंदी पत्रकारिता से ही जो है जीवन चला और आगे बढ़े, तो सहज भी इसी में महसूस करता हूँ और इच्छा भी यही है। करीब 28 साल का जो ये मीडिया का अनुभव रहा, उस अनुभव में जब हम धरातल तक पहुंचते हैं, ग्राउंड स्तर तक जाकर हम जब पत्रकारिता करते हैं, तब ऐसे विषय रोजाना हमारे सामने आते हैं जिसमें मानवता जुड़ी हुई है, मानव अधिकार जुड़े हुए हैं और इस मानव अधिकार संरक्षण का विषय जुड़ा होता है। कहने को इसे मीडिया की दुनिया में केवल अपराध पत्रकारिता कह के जो एक तरफ कर दिया जाता है, लेकिन केवल ये क्राइम रिपोर्टिंग नहीं है, इसके जो मानवीय पहलू हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि मानवाधिकार जो विषय है, इसमें पुलिस भी जुड़ी है, हमारी न्यायपालिका भी जुड़ी है, हमारी सरकारें भी इसमें शामिल है और कमीशन भी बने हैं और यूनाइटेड नेशन तक की भागीदारी सबके बीच में रही है। लेकिन अगर इस विषय को अगर हम एक शब्द में जोड़ना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि मानवता का ध्यान रखना इस सारे संदर्भ में सबसे प्रमुख है और इसी विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मानवता पूरे विश्व में एक ही विषय है, पूरे विश्व में एक ही तरह का बकर कर रहे हैं। जी जी मानवता के इस मानव अधिकारों की जागरूकता की जहां तक बात आती है तो उसमें मीडिया की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत ही अहम रहती है और हम पत्रकार होते हुए इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश भी करते हैं, उठाते भी हैं। मैं एक छोटा सा एक समाचार कह सकते हैं, एक घटना जो मेरे साथ मेरे पत्रकारिता के बीच में जो जुड़ी रही, मैं उसका उल्लेख आज यहाँ करना चाहूँगा। एक खबर मुझे उस समय मिली 2006 में, मैं जब सहारा समय एनसीआर में रिपोर्टिंग करता था। केवल एक लाइन की खबर आई कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर घर के दरवाजे के बाहर बैठी है और उसके सास ससुर उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे, बारिश आ रही है, बच्चा भीग रहा है, महिला भीग रही है। लेकिन जो परिवार था वो काफी रसूख वाला परिवार था, उनकी पहचान कह सकते हैं कुछ अधिकारियों की थी और एडवोकेट थे उस फैमिली के, जो उसके ससुर वगैरह थे। इस खबर के जैसे ही हमें मिली, हम पूरी उस कैमरा टीम के साथ वहां गए, जाकर जानकारी ली तो पता लगा कि उसको परिवार के लोग अंदर नहीं आने दे रहे और उसका पति जो है वो बाहर था उस समय और उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो दरवाजे पर बैठी हुई। हमने इस विषय को जो है, क्योंकि उसने पहले भी पुलिस को कॉल की हुई थी और फिर हमने भी इस विषय को उठाया, तो धीरे धीरे जब बात फैलनी शुरू हुई और टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट हमने शुरू किया। जैसे ही पहला बुलेटिन लाइव टेलीकास्ट हुआ, पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी वहां आने शुरू हो गए, कई एनजीओ वहां आनी शुरू हो गई और पब्लिक भी काफी संख्या में जो है उनके साथ जुड़ गई। और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बुलेटिन दूसरे बुलेटिन, हर घंटे बाद एक बुलेटिन करते हुए रात बीत गई, लेकिन पुलिस के अधिकारी भी उस महिला को उसके घर के अंदर तक एंट्री करवाने में पूरी तरह से अभी सफल नहीं रहे थे। लेकिन सारा समय में उस समय काम करते हुए हमने रात तक उसको कवरेज किया, रात का रिपोर्टर फिर वहां लगाया, सुबह आकर फिर वो इसी कवरेज को जारी रखा और असर ये हुआ कि अगले दिन 11 बजे उस जो परिवार के जो अंदर के लोग थे, पुलिस ने उनको छुपाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और उस महिला को उस घर के अंदर एंट्री हुई। और उस समय ये कह सकते हैं जो उस महिला के जो भाव थे, वो जो उसका अधिकार था उसे जो मिला, उस बात को लेकर जनता ने भी उसकी जो है बहुत सारी तारीफ की, सराहना की कि टीवी को इस तरह के काम भी करने चाहिए। तो ये तो एक विषय रहा टीवी के अंदर काम करते हुए हमें, चाहे वो किसी भी तरह की कवरेज हो जहां किसी गरीब को सताया जाता है, अत्याचार कहीं किया जाता है,
या किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। ऐसे विषयों को मीडिया के माध्यम से उठाना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, और हम उसको लगातार करते हुए आए। करीब 28 साल के जो मेरा मीडिया का अनुभव रहा, टीवी चैनल्स का रहा हो या अखबारों का रहा हो, वो करीब 20 साल के बाद अब आज जो समय आया है वो आज सोशल मीडिया का है। अब बहुत सारे लोग टीवी अखबार शायद कम देखते हैं, लेकिन जो कुछ उन्हें दिखाई देता है अपने मोबाइल के अंदर दिखाई देता है, यानी कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम। इन सब पर भी ये जागरूकता के अभियान चलते रहें, इसके लिए हमारा जो संगठन है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो जागरूकता के अभियान लगातार चलाता रहता है, और जहां तक हो सकता है कुछ लोगों की जहां मदद की जा सकती है वहां हम सब कुछ साथी मिलकर करते रहते हैं, चाहे वो दिव्यांगों को व्हील चेयर्स देना हो, या बच्चों को स्कूल बैग्स देके उन्हें शिक्षित करने की तरफ कदम उठाना हो, या कुछ ऐसा है या जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना हो, या इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये कार्य आज जैसे मीडिया में रहकर हम करते हैं, आज हम एक संगठन के रूप में अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और मैंने इस संगठन को शुरू करने का भी इसीलिए सोचा था कि जब मेरा 28 साल के करीब जो पत्रकारिता का समय बीता, तो उससे आगे क्या किया जाए, जब ये सोचने की बात आई, तब मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे समाज की सेवा या देश की सेवा या मानवता की सेवा के लिए ही आगे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और इसके लिए मैं एक टर्निंग पॉइंट भी याद रखता हूं कि जब कोरोना का समय आया था तो मैं भी उसकी चपेट में आया। 6 दिन ऐसे गए जिसमें केवल छत और पंखा दिखाई दिया था। उसके बाद जब निकल कर आए और लगा कि ये दूसरा जन्म हुआ है, उस समय करीब 28,000 के करीब पेशेंट्स मौतें रोजाना हो रही थी, तब ये लगा कि जब एक दूसरा जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर उसे हमें मानवता की सेवा के लिए लगाना चाहिए, देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए लगाना चाहिए। इस विषय को लेकर हम लगातार काम करना शुरू किया और करते आए। इसको विश्व स्तर पर ले जाने के लिए हमने ये कोशिश की कि क्योंकि दिल्ली में सारी एम्बेसीज हैं, सभी देशों की एम्बेसीज से हमने पत्राचार किया, उनसे बातचीत करते हुए आज हम करीब 18 देशों और 22 राज्यों में मानव अधिकार संरक्षण जागरूकता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनसे जहां हो सकती है लोगों की मदद करना और रोजाना जागरूकता के लिए कुछ संदेश जारी करना, और ये सब लगातार इस संगठन के माध्यम से चल रहा है। रही बात, फिर वापस हम अपने विषय पर आते हैं, मीडिया और मानवाधिकार। तो जो मीडिया की जिम्मेदारी है उसको अब मैं अगर सही सच्चाई से कहूं तो मीडिया अब उस विषयों पर थोड़ा सा कम फोकस कर रहा है। ज्यादा जरूरत है कमर्शियलाइज होना। एक हद तक तो ठीक है, आप विज्ञापन से आप टीवी चलाते हो, विज्ञापन से अखबार चलाते हो, लेकिन मानवीय पहलू को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। इस विषय के लिए जो है हमारे, चाहे वो समाचार पत्रों के संपादक या मालिक हों या टीवी चैनलों के मालिक हों, उन सबको जो है इस विषय पर खास ध्यान देना होगा। और रही बात ये कि मानवता के लिए लड़ना ही क्यों पड़ रहा है, ये बहुत, अगर इस सवाल को हम उठाते हैं कि मानव को अपने अधिकारों के लिए भी आज लड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जागरूकता की कमियां हैं, या कह सकते हैं कि सोच को जो है ना और थोड़ा ऊपर उठाना है, समाज की, देश की सोच को आगे बढ़ाते हुए इसमें काम करना है। तो मीडिया की भूमिका निश्चित तौर पर और ज्यादा हो जाती है। और क्योंकि मीडिया भी एक समाज का आईना है, और उसमें जब लोग पढ़ते हैं, जो उसको जिस तरीके से लिखा जाता है, उस लिखने के तरीके में भी जो है ना एक पत्रकार की जो है विशेषता सामने आ सकती है। हम किसी भी विषय को लिखते समय कितना ही सेंसेशन भी बना सकते हैं, कितना साधारण भी बना सकते हैं, और कितना ही जो है उस पक्ष को या उस विषय को लेकर महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। तो मीडिया की भूमिका निश्चित तौर पर ज्यादा है, और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मीडिया को और ज्यादा सजग होना होगा, और ज्यादा इसके लिए जागरूक होना होगा, संवेदनशील होना होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं, और जो नई पीढ़ी आ रही है मीडिया की, जैसे भारतीय विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लगातार हम गाइड करते समय उन खबरों की कवरेज में मानवीय पहलुओं को विशेष ध्यान में रखते हुए
समाचारों को प्रकाशित करना और प्रसारित करना जो है वो सिखाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को हम जैसा सिखाएंगे वो उसी तरह से आगे जो है वो अपने कार्य को जारी रखेंगे। तो मीडिया की जो ट्रेनिंग है उसमें आज हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसमें भी लगातार शामिल हैं। और भारतीय विद्यापीठ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो लगातार इस तरह की वेबिनार करके भारतीय विद्यापीठ ने जो इस विषय को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर एमएन हुड्डा साहब का और पूरी टीम का, जो लगातार इस विषय को लगातार जारी रखे हुए हैं। मेरी और हमारी पूरी टीम की जहां भी जब भी जैसे भी जरूरत हो हम हमेशा दिन रात हाजिर हैं। आप जहां आदेश करेंगे वहां हम लोग जो है इसके लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं और लगातार इसमें जुटे रहेंगे। और रही बात फिर अगर मानव अधिकारों की बात आती है, शुरुआत आज से नहीं है। मानव अधिकारों को या अधिकारों को लेकर ही महाभारत हुई थी। महाभारत काल से अगर इसकी अगर बात शुरू करें तो न्याय दिलाना जो है विषय था इस महाभारत का भी, और न्याय दिलाया भगवान श्री कृष्ण ने। आज न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सक्षम है और बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम भी भारत सरकार ने और न्याय व्यवस्था ने शुरू किए हैं, जिसकी जागरूकता शायद कम है और ज़्यादा फैलानी होगी। दिल्ली में हम लोग DLSA के साथ काम करते हैं, जैसे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। हर अदालत के अंदर एक ऐसा विभाग होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि कोई भी एक गरीब व्यक्ति है जो न्याय से वंचित रह गया हो, जिसकी आमदनी लगभग 3 लाख रुपए से सालाना से कम है, उनको पूरी तरह से मुफ्त न्याय की व्यवस्था सरकार और अदालतों में की गई है। उनका पूरा केस लड़ने के लिए मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है अदालतों में इस समय उपलब्ध हैं। इन सब की जागरूकता होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और इसी विषय पर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और आप सब सम्मानित जन भी इसी विषय को लेकर आगे काम कर रहे हैं कि न्याय का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो या अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, हर विषय पर आज हम लगातार जागरूकता फैलाएं, ऐसी वेबिनार लगातार आयोजित की जाएं। इसके लिए मैं अंत में एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं भारतीय विद्यापीठ और श्री एमएन हुड्डा जी का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई योगराज जी। मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आपने इस बात पर जोर दिया कि उसे और अधिक संवेदनशील बनना पड़ेगा। व्यावसायिकता के इस चक्र में कहीं वो संवेदनशीलता, मानवीय पक्ष धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। आप अपने संगठन के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति सजग जागरूकता के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके इस पुनीत कार्य के लिए। चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं प्रख्यात न्यायविद न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार जैन साहब को, जो हमारे इस न्याय व्यवस्था से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। टोंक जिले के एक छोटे से गांव निवाई से आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने विधि स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा किया। तत्पश्चात राजस्थान में आपने अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीयन कराया और केंद्रीय और राज्य सरकारों के अनेक विभागों के साथ आपका जुड़ाव रहा। बहुत सारे केसेस से आपको एक तरह से एक अनुभव रहा, जिसमें विशेषकर जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसमें काम करते हुए आपने दीवानी, फौजदारी, राजस्व, रिट्स, टैक्स और संवैधानिक आदि सभी तरह के मुकदमों की पैरवी की। न्यायमूर्ति श्री जैन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए वर्ष 2004 सितंबर में। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश और कार्यवाहिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। दिसंबर 2013 में न्यायमूर्ति जैन को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2014 में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आपको सिक्किम के मानव अधिकार आयोग का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहां कार्य करते हुए
आपको अप्रैल 2018 में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार से आपने देश के 2 प्रमुख मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इसके अतिरिक्त सिक्किम में आप एक न्यायिक जांच आयोग के भी अध्यक्ष रहे। तो स्पष्ट है आदरणीय न्यायमूर्ति श्री N.K. जैन का व्यापक अनुभव न सिर्फ हमारी उस न्यायिक व्यवस्था का रहा, वरन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी आपने इस 2 प्रदेशों के प्रकारांतर से पूरे देश के उस मानवाधिकारों का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसको निकटता से देखा, महसूस किया है। क्योंकि मानवाधिकार आयोग का मुख्य कर्तव्य या जो ध्येय है वो यही है कि आम आदमी जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसे कैसे राहत पहुंचाई जाए। और जिस तरह से M.K. देवराजन साहब ने बताया कि एक खबर से किस तरह से हमारी पूरी व्यवस्था में बदलाव की दिशा में हम काम कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे इस अवसर पर मीडिया की भूमिका की बात की गई। मीडिया में अक्सर इस तरह की खबरें प्रकाशित होती रही हैं और मीडिया, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, कि एक वॉचडॉग के रूप से, एक प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तो एक न्याय व्यवस्था में संरक्षक की भूमिका निभाने वाले न्यायमूर्ति जैन इन मुद्दों को किस रूप में सोचते हैं, आइए हम साझा करते हैं उनके अनुभव को अपने साथ। आदरणीय न्यायमूर्ति श्री N.K. जैन। गुड इवनिंग एवरीवन। सुनने में आ रहा है सब? मानवत साहब? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है। आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वेबिनार के आयोजकों ने इस वेबिनार का विषय मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स रखा है। वह वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व वक्ताओं ने मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर काफी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, इसलिए बिना ज्यादा रिपीटिशन के संक्षिप्त में इस विषय पर मैं अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार क्या है, इसका प्रादुर्भाव कब से, कहां से, किस रूप में हुआ, संक्षिप्त में बोलना उचित रहेगा। आप सभी लोग मानव अधिकार से परिचित हैं। मानव के जन्म लेने से ही नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व माँ के गर्भ धारण से ही माँ एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के मानव अधिकार चालू हो जाते हैं। गर्भवती माँ के पोषण आहार, न्यूट्रिशन फूड का अधिकार चालू हो जाता है। शिशु के जन्म लेने से ही बच्चे का भी मानव अधिकार चालू हो जाता है। शिशु के दूध पीने एवं माँ के दूध पिलाने का अधिकार शुरू हो जाता है। गर्भस्थ अवस्था के दौरान एवं बाद में वर्किंग लेडीज के लिए छुट्टियों का अधिकार चालू हो जाता है। इन सभी के बारे में हमारी केंद्रीय व राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून, नियम, स्कीमें बनाई है। इसके बाद मानव की जो भी आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, उचित शिक्षा, स्वच्छ पानी, अच्छा स्वास्थ्य, उचित इलाज आदि सभी मानव अधिकार के परिधि में आते हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को हम साधारण भाषा में नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, और मूलभूत या संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति के बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह किसी भी राष्ट्र या जगह का हो, या किसी भी लिंग, रंग, धर्म अथवा भाषा या किसी भी स्टेटस का हो, उन सभी को प्राप्त होता है। सबसे पहले ये नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स के रूप में मैग्ना कार्टा 1215,
पिटिशन ऑफ राइट्स 1628, द हेबियस कॉर्पस एक्ट, द बिल ऑफ राइट्स और एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन इंग्लैंड 1701 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में इस पर प्रकाश डाला गया है। पहले इसको जस्ट नेचुरली जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है कानून प्रकृति स्वयं बनाती है और भगवान ही इस कानून का सोर्स है। आप सबको विदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर सन 1939 से 1944 के बीच हुआ। इसके पश्चात ही ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार शब्दों का आगमन हुआ। आज जो स्थिति मणिपुर राज्य में दंगों की वजह से, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध और इजराइल और हमास के बीच युद्ध की वजह से बनी है, उससे भी बदतर स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी थी। निशक्त जन, महिलाएं, बच्चे ऐसे देशों के व्यक्ति जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, सभी प्रभावित हुए, बिना वजह मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार पर लिखित में नियम बनाने के लिए बाध्य, कंपेल किया गया और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 25 जून 1945 को अंगीकार अडॉप्ट किया गया, जो 24 अक्टूबर 1945 से लागू हुआ और उसके बाद ही ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार शब्द अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में आया। इसी चार्टर के तहत यूनाइटेड नेशंस को ह्यूमन राइट्स के ऊपर नियम बनाने की अथॉरिटी मिली और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 यूडीएचआर प्रथम अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स बना, जिसे 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। तब से ही 10 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हम 75वां अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। इस यूडीएचआर 1948 में प्रियम्बल के अलावा 30 आर्टिकल्स हैं। इस असेंबली के में विश्व के ज्यादातर देशों ने भाग लिया। इसमें एक देश इंडिया भी था। भारत अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यूडीएचआर 1948 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट हुआ। भारत की आजादी के बाद भारत में लिखित संविधान बनाने के लिए एक संविधान समिति का गठन किया गया, जिसने विश्व के सभी देशों के संविधानों का एवं यूडीएचआर 1948 का मनन करके एक लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया। इस तारीख को हम पहले लॉ डे और अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को भारतीय पार्लियामेंट ने 26 जनवरी 1950 से लागू किया। इस दिन को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान में पार्ट 3 में जितने भी मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वे सभी यूडीएचआर 1948 में भी समाहित है। या हम ये कह सकते हैं कि यूडीएचआर 1948 के सभी आर्टिकल्स किसी न किसी रूप में भारत के संविधान में लिए गए हैं। अतः इन सभी ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी भारत के अंदर कह सकते हैं। सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए संविधान में आर्टिकल 32 एवं 226 को रेमेडी के रूप में समाहित किया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में एवं आर्टिकल 226 में अपने राज्य के हाई कोर्ट में भारतीय नागरिक सीधे रिट याचिका प्रस्तुत कर
अपने मूलभूत अधिकारों से संबंधित वांछित रिलीफ प्राप्त कर सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 एवं 226 को भी फंडामेंटल राइट मान लिया है। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में पार्ट 3 में जोड़ लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों के अनुसार हर देश को मानव अधिकारों के बारे में अपने अलग अलग कानून बनाने थे। अतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 तुरंत प्रभाव से लागू किया। तत्पश्चात भारतीय संसद ने 8 जनवरी 1994 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पारित कर अध्यादेश की तारीख 28 सितंबर 1993 से उसे लागू किया। इस एक्ट की धारा 2D में ह्यूमन राइट्स को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू नंबर 1 लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। यानी मानव अधिकारों का अर्थ संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया वह अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में सम्मिलित किया गया भारत की अदालतों द्वारा कार्यकर किए जाने योग्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार है। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकारों एवं मूलभूत अधिकारों की अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में विस्तृत रूप से व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना है। MC मेहता विरुद्ध भारत संघ के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ वायु के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार में माना है। तत्पश्चात दिल्ली और अन्य स्थानों पर वाहनों को CNG से चलाने की कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार बना बिहार राज्य के मामले में पोल्यूशन लेस एयर और राइट टू वाटर को आर्टिकल 21 का पार्ट माना। गंगा प्रदूषण केस में जल के स्वच्छ और पेयजल के उपयोग को मानव अधिकार माना। मुरली एस देवड़ा विरुद्ध भारत संघ के केस में लोक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित करने का निर्देश दिया। नगर निगम रतलाम बनाम वर्धीचंद के मामले में यह बचाव अमान्य किया कि आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है और संवैधानिक निर्देशों के पालन के निर्देश दिए। PUCL सोसाइटी के केस में राइट टू फूड को आर्टिकल 21 का पार्ट माना। इस जजमेंट के बाद संसद द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पास किया। उपरोक्त निर्णय केवल उदाहरण के रूप में बताए हैं, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट व कई हाई कोर्टों ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। जहां तक मीडिया और ह्यूमन राइट्स का प्रश्न है, मेरी राय में आज मीडिया लोकतंत्र का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बाद चौथे पिलर के रूप में जाना जाता है और इसी रूप में कार्य भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने UDHR 1948 के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानव अधिकारों से संबंधित कानून बना दिया। भारत के संविधान में पार्ट 3 में सभी मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों के नाम से शामिल किया गया एवं भारतीय संसद ने 1993-94 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पास कर
इस अधिनियम के धारा 2D में मानव अधिकार को परिभाषित कर दिया, किंतु इन सब कानूनों की जानकारी उस जनता को जिसके लिए कानून बनाए गए नहीं है। अतः सभी मीडिया पर्सन्स का भी यह कर्तव्य है कि इन सभी अधिकारों के बारे में अपने अपने साधनों से, अपने अपने तरीकों से आम जनता को इस संबंध में जागरूक करें और आम जनता की ओर से इस संबंध में आवाज उठाएं। आपकी एक आवाज से राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच जाती है। मणिपुर के बारे में प्रिंट मीडिया ने जानकारी दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वीडियो वायरल किया, उसके पश्चात ही राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार हरकत में आई और वहां के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचा गया, एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शो मोटो कोग्निजेंस लिया, एक उच्च स्तरीय कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया। जिस व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, उसकी व्यथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में आ जाती है, तो उस व्यक्ति का कार्य घर बैठे हो जाता है। मीडिया की खबर के बाद उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेश होते हैं और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। जयपुर के पास ही एफसीआई एवं गवर्नमेंट गोडाउन में 20 लाख टन अनाज भरा था और सड़ भी रहा था, और उन गोदामों के से 5 किलोमीटर की दूरी वाले गांवों में नागरिक अन्न के अभाव में एवं गरीबी के कारण व्रत व उपवास की तरह, बच्चे एक टाइम व बड़े एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन ग्रहण करने को मजबूर थे। उन तथ्यों के आधार पर पीयूसीएल सोसाइटी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भारतीय संसद ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पारित किया और इन्हीं प्रावधानों के तहत केंद्रीय व राज्य सरकारों ने नियम व स्कीमें बनाकर गरीब परिवारों को चिन्हित करना शुरू किया और अनाज मुफ्त भी दिया एवं आज भी चिन्हित परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है। यह सब मीडिया के कारण ही संभव हो पाया है। मीडिया, सरकार एवं आम जनता, पब्लिक के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गवर्नमेंट की स्कीमों की जानकारी मीडिया के जरिए पब्लिक को मिलती है और पब्लिक की तकलीफों की जानकारी मीडिया के जरिए शासन, गवर्नमेंट को मिलती है। लेकिन एक बात मैं मीडिया को अवश्य कहना चाहूंगा कि मीडिया पर्सन्स निष्पक्ष रूप से, पूर्ण ईमानदारी के साथ तथ्यों की पूरी छानबीन करने के पश्चात ही, मामले की सत्यता के साथ ही मामले को जनता के समक्ष रखें। आजकल हर महत्वपूर्ण मामले की ट्रायल मीडिया द्वारा अदालत में केस जाने से पूर्व ही अपने फैसले के साथ कर देता है, जबकि अदालत केस की ट्रायल व फैसला पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं शहादत के आधार पर ही करता है। मीडिया की राय के विपरीत अदालत का आदेश आने पर जनता के सामने अदालत की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जो उचित नहीं है। जो काम अदालत में होना है उसे मीडिया अपने हाथ में नहीं ले। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया को अपनी राय देने के बजाय केवल तथ्यों और शहादत को ही प्रस्तुत करना चाहिए। कानून की पूरी जानकारी के अभाव में मीडिया की कई राय बिल्कुल गलत होती है, जिसके कारण अदालत पर जनता कई मामलों में प्रश्न चिन्ह लगाती है। मीडिया की निष्पक्षता एवं सही तथ्यों के प्रस्तुत होने पर अदालत को भी कई तथ्यों की जानकारी मिलती है और उस एंगल से कोर्ट भी केस को एग्जामिन करता है, सबूत पेश करने के लिए पार्टियों को समय देता है। अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को मीडिया को चाहिए कि वह एज इट इज, बिना अपनी राय व सुझाव के प्रस्तुत करे। मानव अधिकार से संबंधित कानून
एवं आयोगों के पावर्स के बारे में भी कुछ कहना उचित समझता हूं। यूनाइटेड नेशंस असेंबली द्वारा पारित यूडीएचआर 1948 के बावजूद 1 साल से ज्यादा समय से रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और कुछ देश रशिया को, कुछ देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मानव अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है जो विश्व के समस्त देशों की जानकारी में है। हजारों लोगों ने दोनों तरफ से अपनी जान गंवाई है, संपत्ति का नुकसान हुआ है और अभी तक युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही हालत इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर है। इसके लिए ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसके कहने से दोनों देश शांत हो जाए। यूडीएचआर 1948 के लागू होने के पूर्व जो स्थिति सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थी, वैसी ही स्थिति या उससे कम स्थिति आज विद्यमान है। भारतीय संसद ने 1993 में अध्यादेश एवं 1994 में अधिनियम बनाकर मानवाधिकार संरक्षण कानून तो बना दिया और उसके तहत राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना भी हो गई, लेकिन उन आयोगों को केवल सिफारिश रिकमेंडेशन देने के अधिकार दिए हैं। आयोग की राय नहीं मानने पर आयोग कंटेम्प्ट जैसा एक्शन नहीं ले सकता। आयोगों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ही अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी आयोग को अपने आदेश की क्रियान्विति कराने का अधिकार नहीं है। इस बारे में अधिनियम संशोधन करने के लिए मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। गरीब व्यक्ति उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में आयोग में तो इजीली जा सकता है क्योंकि वहां पर खर्चा नहीं आता है, स्वयं भी एप्लीकेशन पेश कर सकता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, मीडिया के थ्रू भी कॉग्निजेंस लेते हैं। किंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना आजकल काफी खर्चीला हो जाने के कारण वहां जाना एक गरीब के लिए मुमकिन नहीं है। अंत में मैं सभी मीडिया पर्सन्स से यही निवेदन करूंगा कि आम जनता के मानव अधिकार या मूलभूत अधिकार के उल्लंघन की बात आए तो आप पुरजोर तरीके से मन से उसे अपने साधनों के जरिए उठाएं और आम नागरिकों को न्याय दिलाने में सहयोगी बने। मेरे सिक्किम के और मध्य प्रदेश के काम करने के और वहाँ के रिलीफ देने के और वहाँ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के कई अनुभव हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। सबको 15-15 मिनट अलॉट किए हैं, मैं 15 मिनट ले चुका हूँ, इसलिए अब उन अनुभवों को जब कभी आप लोग दोबारा कभी मौका देंगे तो शेयर करूँगा। स्वामी मीडिया पर्सन्स को मैं जरूर जो मैंने बताया है सुझाव और सजेशंस वो उसकी पालना वो करेंगे तो बड़ा अच्छा नागरिकों के हित में रहेगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। नाउ आई विल रीड द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2023 जो आज यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। वैसे भानावत साहब ने पढ़ दिया है, रिपीटिशन के दौर पे दोबारा पढ़ देता हूँ। द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2023 इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। आज जो हमारे द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज गिवन द फॉलोइंग मैसेज, जो आज 10 दिसंबर 2023 को उन्होंने दिया है, वो ये है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन शोज द वे टू कॉमन वैल्यूज एंड अप्रोचेज दैट कैन हेल्प रिजॉल्व टेंशंस एंड क्रिएट द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आवर वर्ल्ड क्रेव्स। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं इस वेबिनार के आयोजकों को, विशेष रूप से प्रोफेसर संजीव जी भानावत को
धन्यवाद एवं आभार जिन्होंने मुझे आज आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका दिया। समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव के लिए। जब तक मानवाधिकार आयोग शक्ति संपन्न नहीं बनेंगे तब तक शायद इन आयोगों के गठन की जो प्रासंगिकता है वो कहीं ना कहीं कम रहेगी। जब तक आयोग अपने निर्णयों को क्रियान्वित कराने में सक्षम नहीं होंगे तब तक एक चुनौती होगी। आपने सही कहा, एक आम आदमी, गरीब आदमी, साधनहीन आदमी जब न्याय की अपेक्षा करता है तो इस महंगी न्याय व्यवस्था में शायद उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन इन आयोगों के गठन के पीछे जो उद्देश्य था वह तभी सार्थक हो पाएगा जब इनको हम अपने निर्णयों को लागू कराने की क्षमता जो है, निश्चय ही जब तक कानूनों में, अधिनियमों में संशोधन नहीं होगा तब तक ये मात्र एक स्वप्न रहेगा। मीडिया ट्रायल पर आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। अक्सर हम लोग भी इस तरह की गोष्ठियों में कई बार चर्चा करते रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कई बार निर्दोष व्यक्तियों को भी कटघरे में खड़ा कर देता है और कालांतर में जब निर्णय मीडिया के प्रतिकूल होता है तो वह न्याय व्यवस्था के सामने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। तो इस अवसर पर जो अपील, अनुरोध, आह्वान आपने मीडिया कर्मियों से किया है, उम्मीद करते हैं हमारे साथ लगभग 125 से अधिक मित्र जुड़े हैं जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, मीडिया कर्मी हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मीडिया के उपभोक्ता भी हैं। वो सभी आपके इस संवाद को सुन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जब वो मुख्य धारा के मीडिया से जुड़ेंगे तो शायद ये विचार, ये सूत्र बिंदु जो आज यहाँ उन्होंने सुने हैं आपके माध्यम से, कहीं उनको अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। आपने बहुत ही सहज रूप से मानव अधिकारों के प्रादुर्भाव होने की जो पूरी पृष्ठभूमि थी, इनको आज के दिन आपने समझाया। बहुत बहुत आभार। हालांकि समय काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कोई मित्र यदि कोई सवाल करना चाहे, कोई टिप्पणी करना चाहे, बहुत संक्षेप में वो सवाल आमंत्रित है। कोई भी बात अपनी कहना चाहे तो अपना वीडियो ऑन करें, परिचय दें और अपनी टिप्पणी या सवाल पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में देख रहा था प्रोफेसर हेमंत जोशी जी, आप यदि हमें सुन रहे हो तो चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी भी इस अवसर पर हमें लाभान्वित करेगी। बहुत लंबा अनुभव मीडिया के साथ आपका भी रहा है, प्रोफेसर हेमंत जोशी। सर सुन रहे हैं आप? नहीं है शायद। चलिए, कोई सवाल नहीं है। जब तक हम वक्ताओं का हमारे आभार प्रदर्शन करें, उनको सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो प्रदान करें, तब तक मैं चाहूँगा प्रोफेसर हुडा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो सर्टिफिकेट लेने के इच्छुक हों उनको उस प्रक्रिया की जानकारी दें। सर्टिफिकेट के लिए जो लिंक है, फीडबैक लिंक, वो शेयर किया जा चुका है। सर, thank you so much, sir. Before I say anything, for the information of the participants, at least for those people who have joined today, यानी जो लोग बिल्कुल नए हैं वो ध्यान से सुने। सर्टिफिकेट सिर्फ इसी चैट विंडो में जो लिंक डाला गया है वो एक सिंपल गूगल फॉर्म है जिसमें 5-6 छोटे छोटे सवाल हैं, वो आप फिल करें और सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करें तो ये ध्यान रखें कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई नाम और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होगा, उससे इस वक्त यहाँ सर्टिफिकेट जनरेट करने का कोई रिलेशन नहीं है। तो जो आप फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं उसमें अपना नाम वैसे लिखें जैसा नाम आप सर्टिफिकेट में चाहते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन या अपनी एफिलिएशन, और अगर करंट कोई एफिलिएशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो जो भी पिछली ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कंपनी रही होगी वो आप लिखें। और कोशिश करें कि एब्रिविएशन में छोटा लिखें क्योंकि सिर्फ एक लाइन की जगह है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के लिए। अगर बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जाएगा और नेक्स्ट लाइन में कुछ और कंटेंट लिखा है उसके साथ इंटरमिक्स्ड हो जाएगा। तो छोटे में ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखें, अपना नाम लिखें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईमेल आईडी है, अगर आपके पास वर्किंग जीमेल आईडी है तो जीमेल की आईडी लिखें। लिखते वक्त स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। जैसे ही ये लिख के, वैसे अगर जीमेल नहीं है तो कोई भी दूसरी आईडी लिखेंगे उस पर काम करेगा, बट जीमेल वर्क्स सीमलेसली क्योंकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो गूगल एपीआई से कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे ही ये सबमिट करेंगे
विद इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स आपकी सर्टिफिकेट आपके फीडबैक से आपका नाम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फेच करके क्रिएट किया जाएगा। सर्टिफिकेट क्रिएट करके उसका पीडीएफ बनाया जाएगा और पीडीएफ आपकी उस ईमेल आईडी पे जो आपने फीडबैक में लिखा है ऑटोमेटिकली अटैच करके आपको ईमेल से आपके इनबॉक्स में डिलीवर किया जाएगा। अगर आपके इनबॉक्स में ना दिखे तो स्पैम फोल्डर भी चेक कर लें, जंक फोल्डर चेक कर लें। हो सकता है कभी बल्क मेल की वजह से सर्टिफिकेट आपके स्कैम फोल्डर में जाए। और इन केस इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिली लेकिन आपने फीडबैक फॉर्म भरा है और 2 मिनट से ज्यादा हो गया, तो यहाँ चैट विंडो है, आप चैट विंडो में अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी लिखें और अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि आप अनम्यूट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। तो जो मेरी टीम मेंबर्स हैं बैकएंड पे, दे विल चेक आपके नाम और आपकी ईमेल आईडी मिलाकर वो यूनिक डिटेल हो जाती है। उससे वो चेक करेंगे कि आपकी सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद उसका गूगल ड्राइव लिंक क्या जनरेट हुआ, वो लिंक वो इसी चैट विंडो में पेस्ट कर देंगे, आप वहीं क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटिक एंड देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन इन बिटवीन। हम सिर्फ आपको लोकेट करने में मदद कर सकते हैं। So if you are not filling up the feedback form now and later on you are calling us, you are sending detail on WhatsApp, you are emailing us, we will be sorry, after closure of this room, the certificate generation process will be closed. So hurry up and fill up your certificate. Meanwhile, we wanted to thank to our all the esteemed speakers today. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी illuminating talk जिस लेवल की आज हुई, possibly वो आज के दिन के जो उनके सम्मान था उसके हिसाब से हुई। और फाइनली हमने जानबूझकर ऑनरेबल जस्टिस साहब की टॉक रखी थी कि जस्टिस साहब फाइनली जस्टिस वाला स्टैम्प आज की टॉक पे लगाएं। मैं इन सब टॉक में जो जिस था कि इन विच एवर कैपेसिटी वी आर वर्किंग, वेयर एवर वी आर वर्किंग, इन वॉट एवर डोमेन वी आर वर्किंग, we must believe that we have to come up, whether we are directly a human right worker or we are not a human right worker, but everyone is by default a human right worker. So we must come up and see to it that at least for the deprived section of the society, at least for downtrodden people, at least to the people who are not in a position to stand for their right, we should stand and come forward for their right. और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद समाज का एक बहुत बड़ा समाज में होने वाली इन चीजों से रिलेटेड एक बहुत बड़ा दायित्व है जो हमारे ऊपर है, हम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है, हम जागरूक लोगों के ऊपर है। हम अपने दायित्व के निर्वहन में भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी करेंगे। और मैंने 4 पंक्तियां कोविड में लिखी थी इन्हीं से रिलेटेड कि समाज के डाउन ट्रोडन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के बारे में हमारे ऊपर बहुत दायित्व है और कुछ जिंदगी में काम नहीं आता। जो वक्त हमें मिला है, कितना वक्त मिला है ये भी पता नहीं है, क्या हमारी कैपेसिटी है ये हमें पता है, या जब हम कुछ करते हैं तो पता चलता है कि हम ये कुछ कर सकते हैं। ये वक्त दोबारा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ हम कर गुजर जाएंगे उससे लोग हमें याद रखेंगे। अभी जस्टिस साहब बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हमें दे रहे थे, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कोविड 2 में कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, जब हम रहेंगे ही नहीं तो हमसे शिकायत किस बात की होगी। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कुछ हम अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे, किसी को जिंदगी में खुश करेंगे, किसी को ना खुश करेंगे, वो यादें हमारी रह जाएंगी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। तो जो वक्त मिला है वो अच्छा कुछ कर गुजरे और यही शायद हमें जागरूक रखेगा और इसी की वजह से हम याद किए जाएंगे। तो जो पार्टिसिपेंट जो लीव कर रहे वो याद रखें, अगले ओकेजन की डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिलेगी, दोबारा जुड़ें एंड विल गो अहेड फॉर सर्टिफिकेट एंड मेमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आफ्टर फॉर वोटर थैंक्स। या गो अहेड प्रियंका प्लीज। डॉक्टर प्रियंका सिंह जो भारतीय विद्यापीठ में जर्नलिज्म स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें और हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटोस भेंट करें। डॉक्टर प्रियंका। We have a memento for Dr. N.K. Devarajan ji. Sir, these memento and certificates are not for the purpose of certification. It is only for the purpose of remembrance that on such an auspicious day, human rights, possibly in our country, we do not realize that how important the human right is. But human right is very important for everyone. So it is a part of remembrance that when this wonderful webinar was organized out of this media lecture series,
you were part of this and has given such an illuminating talk. Thank you very much. एंड मिस्टर योगराज शर्मा जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया बात कही और जिस तरीके से वो मीडिया में रहते हुए इन्होंने ये रियलाइज किया कि कहाँ और किस तरीके के काम की जरूरत है, मेरे साथ बैठे हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टॉक, फॉर सर्टिफिकेट एंड योर मेमेंटो. एंड जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी, इनका क्या कहना है? जस्टिस साहब हैं, माइट हैव encountered many such situations in the life and now actively involved in it. So thank you so much, sir. We will have, I think, a much more detailed session on human rights, but this was to celebrate World Human Rights and make people aware that to which extent we are responsible for this. So thank you so much. Yeah, Priyanka. Priyanka, am I audible to you? इनका कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है. आवाज नहीं आ रही है. Can we leave now? सर आप एक सेकंड सर, एक सेकंड. एक और सर्टिफिकेट है हमारे साथ, मिस्टर योगराज शर्मा जी हैं. तो he has also brought, because he is running World Human Rights Organization and very actively doing, once he knew that we are organizing this lecture series and celebrating World Human Rights Day, so he has also brought some certificates which he wanted to present to all of us. So what I will do, that just a minute, it was supposed to be shared by Priyanka, but now I'm trying that if I can share. Acha, oh yes, Priyanka has shared it. So I request Mr. Yograj Sharma ji to please present these certificates to the valued experts today. And he requested me that give me this slot, because the way this day has been celebrated, that was very appealing and very wonderful. So Mr. Yograj Sharma ji, जी please. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे समय दिया, मौका दिया, मुझे सौभाग्य मिला कि आप सबको मैं सम्मानित कर सकूं. और मैं इस सर्टिफिकेट शब्द को सम्मान पत्र के रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ, बहुत सब कह सकता हूँ कि तुच्छ हूँ. वो मैं सर्टिफिकेट देने के लायक नहीं, बल्कि मैं एक सम्मान देने के लिए एक छोटे से यादगार के रूप में लाया हूँ. जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी, प्रोफेसर M.N. हुड्डा जी, डॉक्टर M.K. देवराजन जी, प्रोफेसर संजीव भानावत जी, डॉक्टर उषा साहनी जी, पुष्पेंद्र सचान जी, प्रियंका सिंह जी, जयंत राठी जी, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जी और एडवोकेट जैस्मीन कौर. कुछ सर्टिफिकेट्स मूव नहीं हो रही है प्रियंका, आपके यहाँ भी आज नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे. कोई बात नहीं, नेटवर्क धीरे धीरे आगे बढ़ा देंगे. All these certificates will be sent to all the honorable experts. And वक्त बदल गया है, बदलते परिवेश में हमें बदलना पड़ता है. हम शायद ज्यादा प्रिंट आउट ना निकालें, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करके रख सकते हैं, नहीं तो सॉफ्ट यहाँ से कॉपी courier भी भेज सफिशिएंट सकते है. हैं लोग अगर और हार्ड कॉपी मेरे पास, चूंकि योगराज शर्मा जी आज कैंपस में है और मैं ऑफिस में हूँ, तो सभी हार्ड कॉपी मेरे पास है और मैं एड्रेस की डिटेल लेके भेज दूंगा. ये देखें, आपने हार्ड कॉपी शेयर कर दी है और सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ. जी, राइट. तो थैंक यू सो मच. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. जी सर. प्रियंका जी, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और सर्टिफिकेट्स